गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैंने अपनी वीडियो शुरू की है तो मैंने सोचा पहले मैं आपको ताज़ा सुबह दिखाऊं और मैं इसमें आपको एक और चीज़ दिखाऊं और वो है जनाब हमारी खेती बाड़ी। और ये हम लाए हैं लीमू का पौधा और ये जो है हमारे बैंगन थे, जिसमें से ये देखिए जब मैं आई स्कूल से तो मुझे पता चला कि इसमें छोटे छोटे से 2 बैगन्स आए हुए हैं भाई। तो ये 2 बैगन्स हैं यहाँ पर और एक कली का बैंगन है, एक छोटा सा, मेरे ख्याल से 2-3 बैंगन्स आ चुके हैं। एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव अ न्यू मेहमान इन आवर हाउस। और अब जो है हम जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पौधा जल गया था हवा की वजह से, तो ये नया पौधा जो है ये फूट आया है और ये जनाब ये भी सही से तरोताज़ा हो गया। और इसकी वजह ये है कि हमारी जो बच्चों की दादी हैं वो वापस आ गई हैं स्कॉटलैंड से, और जिस तरह वो इन पौधों की देखभाल करती हैं तो भाई पौधों ने तो खूब फल ही देने हैं। और ये देखिए हरी मिर्चों में फूल आ गए हैं। और ये टमाटर का एक और पौधा फरहान ले आए थे खुशी से, और ये जनाब हमारे बन गए टमाटर जो कि नहायत लजीज और मीठे मीठे हैं। यकीन करें ये जितने भी टमाटर हैं ये सब लूलू वगैरह में मिलते हैं, लेकिन जो ये खुशी होती है ना छोटे से पॉट से या क्यारी से अपने ये सारे फल और फ्रूट्स वगैरह तोड़ के खाना, इसकी बात ही अलग है, इसकी खुशी बहुत है। बस मुझे वो होता है कभी कभी कि जब मैं यहाँ विला में आई थी और मेरा किचन गार्डन था तो मैंने क्यों नहीं शुरू की वीडियो बनाना। अगर मैं बनाती तो आप लोग लाजिम देखते कि वो मेरा कितना अच्छा गार्डन था। चले आए जनाब इब्राहिम का एक छोटा सा स्किट देखते हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद है मुझे। How are you? I'm good. I'm good. How's life? Yeah, it's good. I got hired for a recent project recently. I mean, you know how it is. Yeah, What about you? I'm good, man. So I have this new business idea. Yeah. Hello guys, how are you guys doing today? Yeah. Can I take orders? Yeah. Just give me 1 second. Yeah. So Yeah, you were saying? so I have this new business idea, Yeah. which I don't know how to. Sorry about that. Sorry. What would you like to have? I would like to have a latte. All right. Yeah. And you sir? Yeah, just the water would be fine. Water. Oh, sorry. Yeah. Continue. Sorry. Yeah. Yeah. So I have this new business idea, which I don't know how to work it Sorry out. guys. Yeah. So I don't know how to work it out. I'm sure you'll get through it. It's about I researched a lot and found out a way to make car fly. Oh, that sounds great. So it's a new flying car. Yeah, no more traffic, huh? Yeah, exactly. So I have this business idea. I have to work it out, but I don't know how. You can do it, man. I believe in you. Sure? So this is the idea, Yeah. which Hey in guys. the Order for you. Yeah, thank you. Latte for you. thank you. So this is the idea where the cars. As Kevin continues to explain his idea to his old friend, he remains oblivious to the true intentions of all those who surround him. Hello sir, how are you? Sorry. I hope you got my inquiry for the business loan. These are my collateral assets for the loan. The most expensive thing here is my mother's house. It's around $100,000-200,000. The loan is $500,000, but this business will work. The flying cars, I hope you check my email, right? The business cars, everything, it will work perfectly. You don't have to worry. Let me just check it out. Very good. Okay, it seems like you have enough for the security. You can check out for the check right there. The barista ends up putting his parents' house as collateral, risking everything over someone else's idea. Did you get everything you needed? Actually, thank you for the idea though. You're welcome. It will work. It better. The idea was good. We got the investment. And to be honest, there is a saying, honesty is the best policy. But dishonesty also works sometimes.
works better. While the barista and his acquaintance celebrate their cunning, Kevin is deep in thought and continues to seek other ways to achieve success, as he didn't like his original idea. Meanwhile, One second. One second. The room, right? Meanwhile, Kevin, who remained true to himself and honest to everyone he interacted with, scrapped the original idea and found success in a different craft. As the barista's business continues to fail and he is not able to repay his debts, the bank seizes all his assets. In the end, dishonesty does not sometimes work, as the truth will always come out at the end. अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको स्किट कैसा लगा इब्राहिम का। और ये जनाब मैं वापस जा रही हूँ कतर, चलिए मेरे साथ। और ये है जनाब 50 रियाल और ये है 100 रियाल। कहाँ का? कतरी। ये है कतरी 100 रियाल और 50 रियाल। अब जो है हम आते हैं कौन से रियाल पर, तो जनाब ये इसके बाद आ जाता है शायद 5 रियाल। तो जनाब ये 5 रियाल हो गए, 100 हो गए और 50 हो गए। ये जो है मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। ये कतरी रियाल थे जो कि मैंने आपके लिए कैप्चर किए। और अब हम जा रहे हैं इस्लामिक म्यूज़ियम कतर के। और ये भी बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। ये इंसानों वाला बना हुआ है, ये उल्टा सीधा नहीं बना हुआ डेज़र्ट रोज़ की तरह। अगर आपने मेरा पिछला वो देखा हो व्लॉग, तो ये बिल्कुल सही से बना हुआ है। लेकिन इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा। कभी ये है कि यहाँ से पार्किंग नहीं है, यहाँ से एंट्रेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ये छोटी छोटी कार्ट्स थे ले जाने के लिए, लेकिन वो भी बंद थे, या पता नहीं उनको दोपहर में नींद आई हुई थी कि उन्होंने वो हमें नहीं लेके गए और हमने दूर पार्किंग की। उसके बाद जो है हम यहाँ पर आए। तो जनाब ये एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस पे हमने 2-3 बाद में वापसी में तस्वीरें खिंचवाई। ये सारा जो है वो पानी पे बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। ये है जनाब इसके अंदर की इमारत और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। और ये जो है 3 से 4 मंजिलों पर है और 3 से 4 मंजिलों पर अलग अलग जो है वो सारा इन्होंने बनाया हुआ है कि यानी अलग अलग उन्होंने म्यूज़ियम में चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें नंबर 7 गैलरी है, जिसमें ईरान का जो है इन्होंने दिखाया है सारा। और ये अगर आप देख सकते हैं, ये सब जो है वो ईरानी जो उज़्बेक डायनेस्टी थी उसके बारे में, बादशाहत के बारे में ये दिखाया भी है। इनके कालीन भी दिखाए हैं। अच्छा, ईरान से आपको पता है मुग़ल हैं, तो मुग़ल जो हैं वो इंडिया में, उनका भी यही सारा रहन सहन है जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। और ये जो है ये बहरहाल ये जो है सारा ईरानी जो है ये सारी इसकी शो है सारी। इस तरह के जो कालीन हैं वो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी। अगर आप मेरे लाहौर मेरा जो ट्रिप है वो देखेंगे, और उसमें अगर आप शाही किला देखेंगे तो आपको ये इस तरह के कारपेट्स वहाँ मिलेंगे। तो बहरहाल ये ज़ाहिर है कतर है और यहाँ का शेख ने ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं म्यूज़ियम में अच्छी खासी उसकी वो करके।
तोहफ़े समझ लें या डिमांड उनकी पूरी करके, तो यहाँ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रखी हुई हैं। वहाँ पर ये सारे कारपेट जो हैं एक तो खुले हुए भी रखे हैं और दूसरा ज़ाहिर है वो बात तो नहीं आएगी। ये जनाब इनके जो हैं ये सारी पोशाकें हैं और जिसका दिल चाह रहा है इसके पढ़ने का वो लाजिम जो है इसको पॉज करके पढ़े। और जनाब ये ड्रेस जो है वो बैम्बू शूट्स वग़ैरह से बनाया गया है जो कि बहुत खूबसूरत है। और इसी तरीके के जो है वो बहुत आगे जो हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेसेस। इस तरह की चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं देखने में, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो हैं वो टर्किश म्यूज़ियम में भी हैं। मैं भूल गई, मैं जब स्कूल में लैपटॉप ऑन करती हूँ मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि जो मैं आपसे कहती हूँ, वादा करती हूँ कि मैं आपको कि वीडियो के एंड में मैं कहती हूँ कि मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी जो मैं जिस वीडियो की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं भूल गई पिछली वीडियो में, बहुत माज़रत। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसमें जो है वो हरम जो है तुर्की का जो हरम एरिया था जिसमें बादशाह की फ़ैमिली रहती थी उसका लिंक शेयर करूं, जिसका है पार्ट 1 और टोपकापी पैलेस का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जनाब ये नेकलेस है ईरान का और मुग़ल आगे भी आएगा, वो भी देखिएगा। ये सारा ईरान का और मुग़ल की चीज़ें हैं। ये सारी तस्वीर वग़ैरह के साथ जो है ये सारी देखें इतनी खूबसूरत तस्वीर कशी है उस ज़माने की कि देखें आज तक पेंट इसका ख़राब नहीं हुआ। और ये क्या कह रहे हैं जनाब, ये रामायण थी, मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द रामायण। तो जनाब ये थी स्टोरी सारी। इसके बाद जनाब हम आ जाते हैं गहनों पर। ये मुख्तलिफ़ किस्म के गहने हैं जो कि बादशाह और ये सब पहनते हैं। अच्छा मज़े की बात है, ज़रूरी नहीं है कि ये गले और बुंदे कान भी हों, कभी ये बेल्ट्स होती हैं, कभी ये कपड़ों पे लगाए जाते हैं। और अब हम जा रहे हैं दूसरे उसमें, ये जो है मेडिटेरियन था और इसमें जो है आपको बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे बड़ी बड़ी सुराहियाँ, बड़े बड़े रोशनदान, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने 3 चीज़ें बस कैटेगरीज़ रखी थी आप लोगों के लिए। एक मैंने ये रखा था और पहला जो था वो ईरानी था और जो आखिरी है वो मुग़ल का होगा। तो उस पर हम जो है ये आज का अपना एंड करते हैं। ये देखें इतनी बड़ा ये थाल है और मैंने कहा कि इब्राहिम कैसे पता चलेगा हमारे देखने वालों को कि ये कितना बड़ा थाल है। तो मैंने कहा इब्राहिम तुम वहाँ जाके खड़े हो ताकि पता चले कि इतना बड़ा थाल था। अच्छा जनाब ये जो पॉट्स हैं ये भी जो हैं ये बहुत बड़े बड़े पॉट्स थे और ये बिल्कुल भी छोटे छोटे पॉट्स नहीं थे। इसमें कुछ रोशनदान था, कोई इसमें जो है वो दिया था, कोई मोमबत्ती रखने का स्टैंड था, इस किस्म की चीज़ें थी। और अंगीठी, इस तरह की चीज़ें थी ये सारी, इंसेंस बर्नर वग़ैरह। तो ये भी अच्छा खासा जो था ये बेसिन, ये देखिए हाथ धोने के लिए तसला। अगर ये शीशे नहीं लगे होते तो मैं आपको बताती कितने अपने हाथ रख के इस पर ये कितने बड़े बड़े हैं। अच्छा जनाब ये है मॉस्क लैम्प, मस्जिद के लिए लैम्प है ये वाला और इस पर बहुत खूबसूरत जो है ये देखें सब बना हुआ है, काम वगैरह इस पर लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। और जनाब ये भी देखें कितना खूबसूरत है और ये भी जो है वो मस्जिद का लैम्प है। अच्छा जी अब आ जाते हैं हम दी आर्ट ऑफ लिविंग इन दमस्कस, यानी दमश्क में जो रहने का स्टाइल था, रहने का रहन सहन था वो इस तरह से था और ये बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये बंद था, यानी इसमें हम बैठ नहीं सकते थे। लेकिन ये लकड़ी का काम इतना खूबसूरत था कि बस बहुत, जिसे कहते हैं ना, एकदम आँखों को अच्छा लगा देख के। चलें जनाब ये हमने देख लिया दमश्क में कैसे रहा जाता है भाई इतनी खूबसूरती से। और जनाब हम आ जाते हैं ये बादशाहों के जो हैं ये शूज़ पर और काफ्तान पर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अरब की हैं, ऊपर के अरब की, और आप देखें कितना खूबसूरत है। और ये जो है इनके ये शूज़ वगैरह भी देखिएगा इतने खूबसूरत है और ये काम भी बहुत ही प्यारा है। और ये जनाब ये तलवारें वग़ैरह हैं और इन तलवारों के लिए जो है कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये तलवारें जो हैं ये चाकू तलवारें ये कहाँ के बने हुए हैं और मैं आपको अभी एकदम से दिखाऊंगी
तो आप ये देखें, ये सारी जो चीज़ें हैं ये वॉर इक्विपमेंट्स हैं, सारे आर्म्ड जो होते हैं। और आपको अब ये दिखाते हैं कि ये जो हम गन्स के पास जाएंगे, ये देखें ये सारी जो हैं इनकी ये आर्मर्स हैं, और ये जो हैं जनाब ये बंदूकें हैं, और आप इन पे काम देखें कितना खूबसूरत है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये कहाँ की बनी है जनाब। ये पेयर ऑफ फ्लिंट लॉक राइफ़ल्स हैं जो कि पाकिस्तान सिंध से आई हैं। ये पाकिस्तान सिंध की हैं जनाब। आप इनकी नालियाँ देखें कितनी लंबी है, वो बंदे के सीने पे ही चली जाए डायरेक्ट, कि गोली मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये भी जनाब पाकिस्तान से है। और देखिए ये वाली जी, बस ये दिखाना था। बाकी जो है मैंने कुछ भी इसमें सारी चीज़ें नहीं दिखाई, लेकिन ये 2 बंदूकें तो दिखानी थी अपने मुल्क के लिए। और ये जो है मैंने गौर से नहीं देखा कि उस पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरे ख़्याल से ये सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, ये उनके डॉक्टर्स या आई थिंक सो हजामत की चीज़ें थी। और शाशका सॉर्ड है, तलवार है, ये सब दिखाती हूँ मैं आपको अब राजा वाजा की। तो ये देखें जनाब, अब हम आ गए मुग़ल उसमें, और ये राजा की जो है ये तलवार है और उसकी ये सारी चीज़ें हैं। और फिर हम जो है वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं इनके हार सिंगार पर। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, इसमें ये बताते थे कि आप किस जगह पर हैं एक उसमें म्यूज़ियम में। अच्छा जनाब, ये जो हमारे वो होते हैं ना तख्त, ये उनके जो है पाए हैं, और ये गोल्ड के बने हुए हैं जनाब। ये देखिए तख्ते ताऊस, मुग़ल एम्पायर शाहजहां, पीकॉक थ्रोन, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। और मैं ये 7th स्टैंडर्ड के बच्चों की जो है वो सोशल स्टडीज़ की किताब में भी है। अच्छा, तो हमने वो देख लिया तख्ते ताऊस, और अब जो है वो हम जा रहे हैं देखिए मुग़ल डायनेस्टी में जो उनका ज़ेवर वग़ैरह है वो देखने। और ये हम क्या खेलने वाले हैं जनाब। अच्छा, ये तो खैर वो है, बॉक्स है, और आप इसकी खूबसूरती देखें कि कितना प्यारा है ये संदूक। और इस तरह से बस मेरा तो यहीं दिल आया हुआ था, और तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया। उसके बाद जो ये एमरल्ड्स, रूबी और डायमंड्स जो हैं बस वो मैं देखने में लगी हुई थी। लाइट्स यहाँ पर कम थी, इसलिए जितनी बना सकी वीडियोस वो मैंने आपके लिए बनाई। ये अभी की चीज़ें नहीं हैं जनाब, ये मुग़ल के ज़माने की ही चीज़ें हैं। आपको इनके डिज़ाइन से जो है वो पता चल रहा होगा। यानी उस ज़माने में जो इस्तेमाल के जो बर्तन होते थे वो भी इतने खूबसूरत बने हुए होते थे, जिस पे सोने का पानी या बाज़ औक़ात सोने के होते थे, और उस पे असली पत्थर लगे होते थे। जो मेरा मुग़ल का वीडियो थी उसमें आपने यकीनन देखा होगा कि किस तरह से दीवारों पे जो है वो असली रूबी और एमरल्ड लगे हुए थे। ये इनकी जो पगड़ी होती हैं, पगड़ी वग़ैरह, उसकी एक सारे जो हैं वो ब्रोचेस और ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखें, ये है बेल्ट, ये इतनी चौड़ी जो है बड़ी सी ये बेल्ट थी। ये ज़ेवर है जनाब, बहुत ही जिसे कहते हैं खूबसूरत। और वहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा इनका हसीन सा पैरहन, और ये जनाब है ज़ेवर। आजकल वैसे इस तरह के ज़ेवर हमारे यहाँ होते हैं दुल्हनों के, ऐसा मसला नहीं है इतने नग वाले। लेकिन बहुत मज़ा आया है असली ज़ेवर देख के उस ज़माने का। चलें जनाब, चूड़ियाँ वग़ैरह देखते हैं, ये बैंगल्स वग़ैरह नहीं कितनी खूबसूरत हैं।
और ये सर में लगाने के जेवर और ये रिंग्स और ये सब। ये आप देखें इसमें कितना बड़ा रूबी लगा हुआ है। अच्छा जनाब, इसको देखते हुए जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज मैंने बहुत अच्छी जगह पर जो है वो अपनी वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो बड़ी ख़ूबसूरत मैंने आपको ज़ेवरात दिखाए हैं। और आज की वीडियो में 2-3 चीज़ें थी। मेरा बड़ा ज़बरदस्त जो है वो खेत था, खेती बाड़ी, वो देखी आपने। इब्राहिम की वीडियो देखी, और जनाब ये ख़ूबसूरत से जो है वो ज़ेवरात, पैरहन, ये सब आप लोगों ने देखे। और आई थिंक सो ये मेरा शायद लास्ट व्लॉग इसका है, कतर डायरीज़ का। आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसके बाद जो है अब हम जाएंगे रियाद। और रियाद में हमने ये देखें जनाब हीरे। और रियाद में जो है वो हम लोग जो 2-3 जगह गए हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप भी इंजॉय कीजिएगा मेरे साथ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।